Okay, so now in today's lecture we'll continue the revision of unit number 2. Okay, that is the applications of partial differentiation, or you can say the introduction of Jacobians, errors and approximation, maximum and minimum. Okay, these are the actually the applications of partial differential equation itself. Okay. Just 1 minute. Okay. So first I quickly revise the theory part of this unit, and then we'll directly solve some some MCQs on this part. Okay. So first you have started with the Jacobian, correct? If u and v are the continuous differentiable function, but I already told you in our syllabus all our given functions are differentiable, are continuous. Okay. And if u is equal to f of xy and v equal to g of xy, this form is called as, what is this form? Anyone? This form is called as implicit. नहीं, explicit. ठीक है, explicit. एक्सप्लिसिट. सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन. मैंने शायद उस टाइम पे आपको मैंने प्रॉपर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट के फॉर्म में ये डेफिनेशन दिए थे. ठीक है. सो इफ u इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x एंड y, v इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x एंड y, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट दिस जैकोबियन यूजिंग डिटर्मिनेंट. ओके. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? दैट u मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x एंड y, करेक्ट, एंड v मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x एंड y. ठीक है. तो अगर ये कंडीशन आपको है वहाँ पे, दैट फॉर्म इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फॉर्म. In that case only you can directly calculate that Jacobian using the determinant, where in first row we have to just take the derivatives of first variable, in second row we have to just take the all possible derivatives of second variable. So okay, so using one determinant you will directly get the Jacobian. Okay, and remember this definition is for explicit function. And same can generalize for a function of three variable. If we have the function u v w which is defined in terms of x y z, okay, that is the explicit form we can say. So in this case Jacobian of u v w with respect to x y z is actually a determinant, where in first row the derivatives of u, second row derivatives of v, in third row derivatives of w. Okay, so these are the two definition. Okay, and remember this definition is only for explicit function. And if we have this explicit form, okay, then we denote j. okay, जो जैकोबियन यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है ना, okay, उसको आपको किससे डिनोट करना है? डिनोटेड बाय j. okay, the Jacobian which is exist using this explicit form, okay, उसको आपको डायरेक्टली j से डिनोट करना है. एंड व्हाट इज j डैश? व्हाट इज j डैश? ये आगे आने वाला है. हाँ, इनवर्स ऑफ दिस, और यू कैन डायरेक्टली कंसीडर एज 1 upon j, और सिंपली रिवर्स ऑफ दिस, दैट इज Jacobian of xy with respect to Jacobian of uv. Okay, so remember all these definitions. Okay. Now next is what? Chain rule. Okay, so you can directly draw this part using a tree diagram. So here we have given u and v. Okay, these two are the functions of x and y. This is given, and x and y are actually the functions of r and s. ठीक है. Then जैसे डेरिवेटिव में आपने लर्न किया, okay, in similar with the derivatives you can directly write the chain rule for the Jacobian. Okay, so what is the Jacobian of uv with respect to rs? Okay, what is that Jacobian? First go from uv to xy, that is Jacobian of uv with respect to xy, and then you can go from Jacobian of xy to rs. So it is very similar to your derivative. Okay, so this is the chain rule for Jacobian. and यहाँ पे आपने एक रिजल्ट देखा होगा that if you reverse this, then you will get a j dash, and in general j into j dash is equal to 1. ठीक है. तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है बिकॉज दिस j एंड j dash आर एक्चुअली रियल नंबर्स. एक क्वेश्चन आपका उस टाइम पे आया था कि सर एक्चुअली इन जनरल वी कैनॉट टेक द इनवर्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, सो व्हाई वी कंसिडर हियर, बिकॉज हियर दिस j is defined using determinant, and the output of the determinant is always a real number. That's why this inverse is exist. Okay, so दिस इज द चेन रूल फॉर जैकोबियन. नेक्स्ट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन. तो यहाँ पे अभी तक आपने जो भी रिजल्ट सारे देखे थे, दैट इज ओनली फॉर एक्सप्लिसिट फंक्शन, वेयर वी हैव गिवन द वैल्यूज ऑफ u and v in terms of x and y. okay, but what happen if we have given the implicit form? okay, जहाँ पे u की वैल्यू v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x y में नहीं है आपके पास एक डायरेक्टली इक्वेशन है. okay, like say this x square plus y square plus u plus v is equal to 0. so this form is called as implicit form, where the u and v are not expressed in terms of x and y, or x and y are not expressed in terms of u and v. okay,
So in that case, how you actually calculate the Jacobian? Okay, so in that case we have a separate results. So denote that first implicit equation by F1, whatever that first equation is there, denote it by F1. Denote the second equation by F2, correct? Then the implicit function. Okay, these two are the implicit function. Then the Jacobian of uv with respect to x y. अभी यहाँ पे implicit form है, तो आप uv का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई भी ले सकते हो, एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू uv भी ले सकते हो. तो यहाँ पे वो रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, j इंटू जेड का वो रोल, मतलब यहाँ पे आप j ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि j कैसे कैलकुलेट करना था, जो एक्सप्लिसिट फॉर्म गिवन है वहाँ से आप j लिखते हो, बट यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट फॉर्म गिवन नहीं है. ओके, तो आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी जैकोबियन को आप j बोल सकते हो, किसी भी जैकोबियन को आप z बोल सकते हो. सो दिस रोल इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको uv का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लेना है, एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू uv लेना है. ओके, दोनों अप्रोचेस सिमिलर है. ठीक है, so what is the formula for Jacobian of uv with respect to xy? Okay, so for this we have to always multiply it by minus 1 raised to the number of equations. So here we have two equations, so minus 1 square. Okay, and मैंने आपको कैसे बोला था, ये हमेशा रिवर्स होता है. So in denominator consider the Jacobian of f1 f2 with respect to numerator, that is Jacobian of uv, and here the Jacobian of f1 f2 with respect to denominator, that is with respect to xy, and this minus 1 square as it is. In this way you can remember this is formula. And same for the function of three variable or the three implicit equations. Okay, similar result is there, only change is what, here you have to consider minus 1 raised to 3 and Jacobian of f1 f2 f3, ये जाएगा नीचे, ये जाएगा न्यूमरेटर में. So UVW comes in denominator and XYZ comes in numerator. ठीक है, so this is the formulas for Jacobian for implicit function. ओके, तो दो चीज़ अभी तक आपको मैंने एक्सप्लेन की है, वन इज फॉर एक्सप्लिसिट फॉर्म, सेकंड इज फॉर इम्प्लिसिट फॉर्म. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, दिस इज आल्सो वी कैन से द एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन. जैकोबियन का ये एप्लीकेशन है. ठीक है, और इस पे एक क्वेश्चन आया था जो ज़्यादा था स्टूडेंट को गेस ही नहीं हुआ कि क्वेश्चन क्या है. ठीक है, आपको मैंने उस टाइम पे क्लियरली बोला था, अगर मैं आपको ये फंक्शन देता हूँ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कैलकुलेट डेबा यू बाय डेबा एक्स, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, पॉसिबल है यहाँ पे कैलकुलेट करना. सो दिस वैल्यू इज 2x. तो एक्सप्लिसिट फॉर्म के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था. ओके, बट व्हाट हैपन इफ आई कंसिडर दिस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन मैंने दिया है, एंड सेकंड इज u प्लस वी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, वो आपको यूज करना है. एंड है यहाँ पे, एंड ऐसे भी आप लिख सकते हो, कॉमा. ठीक है, अगर मैं ये दो इक्वेशन आपको देता हूँ एंड देन इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन कैलकुलेट डेबा यू बाय डेबा एक्स, अभी पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल नाउ यूजिंग अवर रेगुलर अप्रोच? बोलो. अगर मैं ये दो इक्वेशन आपको दे देता हूँ, ठीक है, तो सिंपली इसके क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने, वी हैव गिवन टू implicit function. अगर आपको इतनी डिफिकल्टी आ रही है तो ओके, इस क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, वी हैव गिवन टू इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये आपको ये रिजल्ट यूज करना है. ओके, और आपको मतलब लॉजिकली भी समझ में आ जाता है कि जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि डेबा यू बाय डेबा एक्स कैलकुलेट करते समय आपको यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सप्रेस करना पड़ता है. ठीक है, तभी ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका रेगुलर अप्रोच से कैलकुलेट होता है. एंड यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई थी वहाँ पे, तो इसलिए आपने इजीली कैलकुलेट किया. बट अगर मैं ये दो इक्वेशन आपको दे देता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैलकुलेट डेबा यू बाय डेबा एक्स, ठीक है, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेबा यू बाय डेबा एक्स यूजिंग अवर रेगुलर अप्रोच, आई हैव टू एक्सप्रेस u इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. बट यहाँ पे फ्रॉम दिस टू इक्वेशन u इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सप्रेस करने, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, एलिमिनेट v फ्रॉम दिस टू इक्वेशन. But here it is not possible to eliminate v using these two equation, or it become difficult. Okay, या ऐसा कुछ इक्वेशन आपको मिल जाएगा कि जिसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा. ठीक है, so since it is not possible to express u in terms of x and y, you cannot calculate डेबा u by डेबा x with our regular approach. Okay, इसलिए आपको क्या करना होगा, using Jacobian you can calculate this value. ठीक है, तो ऐसे केसेस में फिर आपको Jacobian का यूज करना. तो ये पहले समझ में आना चाहिए कि जैकोबियन ही क्यों यूज करना है, रेगुलर अप्रोच से क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, या अगर आपको फिर भी गेस नहीं हो रहा है तो आप ये याद रखो कि इस क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, वी हैव गिवन द टू इम्प्लिसिट इक्वेशन, कॉमा करके ऐसे दो इक्वेशन आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंस. ओके, सो इफ तो इसमें दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लिसिट फंक्शन,
इज ओनली फॉर एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो इसमें इम्प्लिसिट का रोल है ही नहीं. सो इफ u इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, v इज इक्वल टू g ऑफ एक्स वाई, एंड देन u and v आर सेड टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट इफ देयर जैकोबियन इज 0, एज सिंपल एज. ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ओके, और एफ जी. ठीक है, ठीक है, ये मीनिंग सेम ही होता है उसका. ठीक है, एंड इफ यू हैव गिवन अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बोला कि फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल में फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या है, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बिकॉज ऑफ 2 डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे ऊपर तो क्या आने वाला है, जैकोबियन ऑफ u v. ठीक है, बट नीचे फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव 3 चॉइसेस x y एंड z. ठीक है, तो इसलिए आपको दो की कॉम्बिनेशन में कंसिडर करना होगा. वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, एंड नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड. और इन तीनों की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, देन ओनली वी कैन कॉल दैट, देन ओनली वी कैन से दैट दिस टू फंक्शंस टू बी डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट. ओके, इज दिस क्लियर? 2 डेफिनेशन क्लियर है ये, क्योंकि आपको ये एमसीक्यूज में आने वाला है क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए, कैसे भी क्रिएट हो सकता है. इज दिस क्लियर ना? फंक्शनल डिपेंडेंस क्लियर हो गया? हाँ, ओके. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स एंड अप्रॉक्सिमेशन. अब इसमें ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाने वाला. इफ एक्स वाई जेड आर द ओरिजिनल वैल्यूज, देन डी एक्स डी वाई डी जेड गिव्स यू एरर, डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई वाई डी जेड बाई जेड gives you relative error, and if you multiply it by 100 those gives you percentage error. आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, calculate the percentage error in the variable x, y and z. And this actually, this result you can direct, for this result you can use the total derivative concept. यही हमने किया है वहाँ पे, है ना. टोटल डेरिवेटिव से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमा मिनिमा. ओके, सो इन आवर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस इट ओनली फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का पार्ट शायद आपके सेल्फ स्टडी में था वो टॉपिक. ओके, आई विल इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक आल्सो टुडे. सो मैक्सिमा मिनिमा के केस में फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आपके मेथड, आपकी मेथड क्या है? फर्स्ट, इन फर्स्ट स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट्स. दिस इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी पॉइंट्स. ठीक है, and how you calculate this? Dab by dab x equal to 0, dab by dab y is equal to 0. So just calculate the stationary points. यही सबसे important step है भाई, इसके आगे इतना difficult नहीं है. This is not at all a difficult part. And after that, for each stationary point we have to check whether that point gives you maxima or whether that point gives you minima. ये आपको चेक करना पड़ता है. So for that we need to calculate r, we need to calculate s, we need to calculate t. What is r? R is the dabba square f upon dabba x square. That is the second derivative of double derivative of, or simply you have to differentiate f 2 times with respect to x. ठीक है, yes is what dabba square f upon dabba x dabba y. This is first you have to differentiate f with respect to y, then with respect to x. T is what? Dabba square f upon dabba y square. That is the in this case we have to differentiate f 2 times with respect to y. तो ये फिक्स नोटेशन है, you can't change these notations also. R S T, and if RT minus S square is positive, in that case only either maxima or either minima will be exist. ठीक है, and it depend on the sign of R. RT minus S square पॉजिटिव के केस में ही मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट होता है, एंड दैट मैक्सिमा मिनिमा डिपेंड ऑन द साइन ऑफ R. इफ R इज पॉजिटिव देन इट गिव्स यू मिनिमा, इफ R इज नेगेटिव देन इट गिव्स यू मैक्सिमा. एंड अगर वो नेगेटिव आता है, RT minus S square की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, सो दैट गिव्स यू नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. एंड एट RT minus S square इक्वल टू 0 दिस केस इज अनडिसाइडेड. ठीक है, तो ये भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया था उस टाइम पे. Yeah, so I think this topic comes in self study. तो ये हमने नहीं लिया था, बट ओके, सो वी हैव टाइम नाउ. उस पर भी एमसीक्यूज आने वाले एग्जाम में. ठीक है, तो क्या अप्रोच है इस मेथड का वो पहले मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं, आपको ये समझ में आएगा. ओके, तो स्टेप 1, Lagrange's method of undetermined multiplier. This method is for function of 3 variable. पहला स्टेटमेंट क्या है? This method is for function of 3 variable. बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन और एक कंडीशन है. ओके, इसमें फंक्शन के साथ आपको एक और कंडीशन भी चाहिए, फंक्शन विथ कंडीशन. In this case only you can apply this Lagrange's method of undetermined multiplier. मतलब जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या जिसको मैक्सिमाइज करना है, जिसको मिनिमाइज करना है, वो तो फंक्शन कंपलसरी रहता है सारे केसेस में. बट यहाँ पे एक और क्या पार्ट ऐड हुआ है, आपके पास एक और कंडीशन भी चाहिए, कंडीशन इन बिटवीन एक्स वाई जेड. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस फंक्शन एंड कंडीशन. ये कैसे होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ. एक क्वेश्चन हमने देखा था,
find the optimal solution of a function where the which is the in which the product of, मुझे याद नहीं आ रहा, फर्स्ट वेरिएबल स्क्वायर ऑफ द सेकंड एंड क्यूब ऑफ द थर्ड, ऐसा कुछ तो है ना, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, और डिवाइड ऐसा था शायद, हाँ, डिवाइड एट 24 इन 3 पार्ट्स, हाँ अभी याद आ गया मुझे, डिवाइडेड 24 इन 3 पार्ट्स, divided 24 in 3 parts in such a way that product of first, okay, product of first square of the second and cube of the third is maximum. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डिवाइड अ नंबर 24 in 3 part, okay, such that product of first square of second cube of third is maximum. ठीक है, तो ये क्या है आपका, किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, दैट बिकम अ फंक्शन. पहले ये क्वेश्चन आप पूछो कि किसको आपको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, ओके, किसको ऑप्टिमाइज करना है, दैट बिकम योर फंक्शन. ठीक है, तो ये होता है आपका फंक्शन. व्हाट इज द कंडीशन हियर, व्हाट इज द कंडीशन हियर, x plus y plus z is equal to 24. तो ये क्या है, ये कंडीशन में जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इट एज फॉर. ठीक है, तो ये कंपलसरी, इस मेथड के लिए ना कंपलसरी इस फॉर्म में आना चाहिए. तो ये क्वेश्चन आपका लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से भी होगा. आपने शायद वो प्रीवियस मेथड से किया, बट इस मेथड से भी होगा. ठीक है, हाँ, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. स्टेप 1 में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई योर फंक्शन. अभी फंक्शन आइडेंटिफाई करने तक डिफिकल्ट नहीं है, एंड जो भी नेक्स्ट इक्वेशन होगा दैट कम्स अंडर द कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका फंक्शन कौन सा है. ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है, जिसको मिनिमाइज करना है, दैट बिकम फंक्शन. एंड उसके साथ आपको एक और कंडीशन भी चाहिए. ठीक है, फाइव, जैसे यहाँ पे एफ आपका फंक्शन था, दिस इज बिकम फाइव. ठीक है, फाइव लिखते समय इक्वल टू 0 सेट करना है, मतलब ये कैसे लिखना है मुझे, फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24 इक्वल टू 0. ओके, नाउ सो दिस इज योर स्टेप 1, जस्ट आइडेंटिफाई योर फंक्शन, आइडेंटिफाई योर कंडीशन. स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन. कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन, कैपिटल F is equal to F plus lambda phi. This is the linear combination you can say. ठीक है, so construct a function capital F which is equal to small f plus lambda phi. ठीक है, so where this lambda is actually called as the Lagrange's undetermined multiplier. ठीक है, or it is the unknown where it is non-zero. Okay, it is non-zero. If it is zero then मतलब ये लेने में भी कोई लॉजिक नहीं है. ओके, हाँ, और इसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दिस differentiate f with respect to x, equate it equal to 0, differentiate f with respect to y, equate it equal to 0, and differentiate f with respect to z, equate this to equal to 0. Okay, so consider these 3 equation. Okay, and from this 3 equation you will actually get the stationary values. From these 3 equation you will actually get the stationary values, means your points xi, yi and zi. This is your step 1 and step 2. यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या क्या करना है. एक गिवन एग्जांपल से आपको f आइडेंटिफाई करना है, कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है, एक कैपिटल F फंक्शन ऐसे क्रिएट करना है जिसको x से डिफरेंशिएट करना है, y से डिफरेंशिएट करना है, z से डिफरेंशिएट करना है, इक्वेटेड इक्वल टू 0. सॉल्व दिस 3 इक्वेशन. कैसे करना है वो अभी छोड़ दो. ओके, दैट विल सी लेटर ऑन. ठीक है, सॉल्व दिस 3 इक्वेशन एंड कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट्स. ठीक है, वट एवर द सोल्यूशन यू विल गेट, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट्स. इस पे MCQs आपको आने वाले हैं. ओके, तो एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप अच्छे से मतलब समझ में आनी चाहिए आपको. ओके, इज दिस क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे था अप्रोच. Yes, sir. ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, यूजिंग हाँ ठीक है, यूजिंग ऑल अबव इक्वेशंस, मतलब इसके आगे उन्होंने क्या किया है, नहीं सॉरी, अब हाँ ये सॉरी स्टेप 2 में ही वो जाएगा पार्ट, स्टेशनरी वैल्यूज कैलकुलेट करने का. अभी वो कैसे करना है वो शायद आपको ओरली नहीं समझ में आएगा, बट ओके, बट ये स्टेशनरी वैल्यू, चलो अभी वो एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है एक्चुअली स्टेशनरी वैल्यूज. एक और पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना रह गया था. दिस मेथड गिव्स यू ओनली स्टेशनरी पॉइंट्स. This method gives you only stationary point. Okay, here you cannot determine the nature of that stationary point. So this method is useful only to determine the stationary point. मतलब ऐसे कौन से पॉइंट से जहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट हो रहा है, ओके, बट कौन से पॉइंट पे एक्चुअली वो एग्जिस्ट हो रहा है, कौन से पॉइंट पे नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, दैट यू कैनॉट कैलकुलेट यूजिंग दिस मेथड.
ठीक है। तो ये दिस इज यू कैन से द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, इसलिए कुछ ज़्यादातर ये यूज नहीं होती है मेथड, ठीक है। जस्ट टू कैलकुलेट स्टेशनरी पॉइंट्स वी कैन यूज दिस मेथड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्टेशनरी पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने, अभी कैसे कैलकुलेट करने में ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, नहीं आ रहा तो विल सी इफ देयर इज एमसीक्यूज, मतलब कुछ एमसीक्यूज में लेने वाला तो उसमें डायरेक्टली आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, जब स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करना है, नाउ दिस क्वेश्चन इज ओपन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। सो यूजिंग दिस थ्री इक्वेशन एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट ये कैलकुलेट करते समय वी हैव टू एलिमिनेट लैम्बडा, ये ऐसे कैलकुलेट करने मतलब टू कैलकुलेट दिस थ्री वैल्यूज एक्स वाई जेड वी हैव टू एलिमिनेट लैम्बडा। ये क्यों करना है, क्योंकि लैम्बडा आपका अननोन है, हियर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो आप चाहो आपको क्या करना है, लैम्बडा को एलिमिनेट करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये सब कुछ कैसे होगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिस इज वन अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करने का। आप एक केस, एक क्या बोला है मैंने, आप ट्राई टू एलिमिनेट लैम्बडा। सेकंड केस क्या है, आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड फ्रॉम दैट यू फाइंड द लैम्बडा। कैसे, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको इमेजिन करना। एक अप्रोच में आप क्या करो, लैम्बडा को एलिमिनेट करो डायरेक्टली एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक्स वाई जेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये कंडीशन यूज करनी है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24 इक्वल टू 0 या F5 कंडीशन, ठीक है। 5 कंडीशन का यूज करके आपको एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड मिलने वाले, ठीक है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन राइट नाउ, ठीक है। बट सिंपल लॉजिक क्या होता है, आपको एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट करने या आप लेके जा सकते हो, या आपको लैम्बडा एलिमिनेट करना है, ये भी आप लेके जा सकते हो। दिस आर द डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड आपके इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा आर है ना, तो आपको क्या करना है, क्या हुआ, यस एनी प्रॉब्लम, ओके। अगर एक्स वाई जेड आपके इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा आर है तो वो वैल्यूज आप इस कंडीशन में पुट करो, यू विल गेट लैम्बडा मिलता है तो फिर से आपको एक्स वाई जेड के एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। बट इतना पार्ट आपको आगे एमसीक्यूज में नहीं आने वाला, तो मैं ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाता हूँ एंड ऑल्सो विल टेक सम एमसीक्यूज ऑन दिस पार्ट आल्सो, ठीक है। तो एटलीस्ट स्टेशनरी पॉइंट्स तक आप याद रखो, आगे का पार्ट मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो नाउ विल क्विकली स्टार्ट द एमसीक्यूज, जितने होते आज कर ले, कुछ एमसीक्यूज कल करने वाले हैं, अराउंड देयर आर 30-40 एमसीक्यूज आते हैं, ओके। तो जो सिंपल है वो मैं क्विकली करने वाला, ठीक है। सो फॉर अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, कैलकुलेट द जैकोबियन, है ना। तो एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, कौन सा फॉर्म गिवन है यहाँ पे, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फॉर्म गिवन है, डायरेक्टली एक्स वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ आर थीटा, वाई इन टर्म्स ऑफ आर थीटा। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स आर एक्स थीटा, वाई आर वाई थीटा, so which is equal to what is xr, cos theta, x theta is minus r sin theta, yr is sin theta and y theta is r cos theta, and if you solve this determinant you will get what, क्या मिलता है यहाँ पे आंसर क्या आपका, r in bracket cos square plus sin square, so cos square sin square is 1, so you will get r, okay। हाँ, अब ये ट्रिबल है, okay, can I skip this, Yes. Yes. ये भी u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आपको कैलकुलेट करना है, सो आई थिंक ये हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा इतना डिफिकल्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैन आई स्किप दिस, Yes. एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u v, ओके, ये मैं कर लेता हूँ, चलो ज़्यादा भी स्किप नहीं कर सकते। एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u v आपको चाहिए, ठीक है। सो ऑलरेडी वी हैव गिवन x इन टर्म्स ऑफ u v, y इन टर्म्स ऑफ u v, तो डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना है। x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u, तो जब आप x को विद रिस्पेक्ट टू u करते हो यू विल गेट e रेज टू v, ये मैंने शायद लिया है sec v, हाँ tan v, देन x का विद रिस्पेक्ट टू v, सो दैट u आएगा sec u tan u, हाँ ये भी है, हाँ e रेज टू v sec u, हाँ, देन v का विद रिस्पेक्ट टू u, दैट इज sec स्क्वायर है ना, क्या हुआ, sec स्क्वायर tan सर, हाँ लिख रहा हूँ मैं अभी, हाँ अच्छा, हाँ। सो e रेज टू v,
और tan का क्या है डेरिवेटिव, sec square u, एंड विद रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा वो sec e raised to v tan u, ठीक है। कुछ मिस्टेक है तो बोलो, डोंट वरी। नाउ जस्ट डू दिस, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, सो दैट गिव्स यू e raised to 2v, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे sec u, करेक्ट, tan square u माइनस e raised to 2v sec cube u, है ना। सो दैट गिव्स मी, क्या कॉमन आ रहा है, e raised to 2v हो क्या, हाँ sec u आप कॉमन ले सकते हो, इन ब्रैकेट यू विल गेट tan square u minus sec square u, what is this value, -1, so your final answer is this, ठीक है, ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। या हाइपरबोलिक का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको नहीं पता है, कुछ चीज़ें आपको चाहिए हाइपरबोलिक के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करके रखो कहीं पे। डेरिवेटिव ऑफ, शायद आपका किसी ने तो लिया होगा मुझे, चलो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये आपको नहीं इंट्रोड्यूस किया कि कभी भी, सर मॅम ने सांगितलं दोन यसने काल होता। ओके, कितना टाइम है, चलो ठीक है। सो नाउ इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, जो जो आपको M1 M2 M3 में हाइपरबोलिक का पार्ट चाहिए ना, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, या आप रिकॉर्डिंग से भी ले सकते हैं, पीपीटी भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, बट आप कहीं पे नोट डाउन करो, किसी पीपीटी में ये पार्ट नहीं मिलेगा आपको, तो यू हैव टू नोट डाउन दिस पार्ट, ओके। सो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर आ जाता है एग्जाम में तो प्रॉब्लम होगी। या एक्चुअली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या यूनिट नहीं है, ओके, एज फार एज द एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग इट्स कंसर्न, तो वो शायद ही ऐड किया है, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं तो वो पूरा इन डिटेल में आपको था सिलेबस में, ओके। पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या, ओके। सो इफ आई कंसिडर दिस वैल्यू e raised to x माइनस e raised to, सॉरी, ठीक है, प्लस e raised to minus x by 2, okay, okay, this value is actually denoted by sine hyperbolic x, so this expression, आप यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। so this expression is actually denoted by sine hyperbolic x, इसको रीड कैसे करना है, sin hx और sin hyperbolic x, ठीक है। सिमिलरली, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, जैसे आपने साइन को डिफाइन किया था, साइन थीटा को डिफाइन किया था, है ना, वो अपोजिट एंगल माइनस वाई हाइपोटेनस, जो आपने इलेमेंट के सारे वो जो डेफिनेशन देखे थे, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है ना, वैसे ही यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स कैसे डिफाइन किया, e raised to x प्लस e raised to minus x upon 2, एंड द वैल्यू लाइक दिस, e raised to x minus e raised to minus x by 2, दिस वैल्यू इज डिफाइंड बाय, मैंने कुछ तो रॉन्ग लिखा है, दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स, सॉरी, दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड दिस इज साइन हाइपरबोलिक एक्स, नेगेटिव साइन साइन हाइपरबोलिक एक्स में, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स, दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। इतना तो समझ में आ गया पहले क्लियरली कि साइन हाइपरबोलिक होता क्या है। अब यही दिस 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 व्हाटएवर द वैल्यू इज देयर, इट इज डिनोटेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। Sir, someone is waiting. Okay. Okay. चल, मैंने फिर से वही लिखा क्या, इरेज करके, जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी चेंज दिस। ये था कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन कॉस का होता है, या ओके, इज दिस क्लियर नाउ, व्हाट इज कॉस हाइपरबोलिक एंड व्हाट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये रियल नंबर ही है ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स का आंसर रियल नंबर ही आने वाला है, कॉस हाइपरबोलिक का आंसर रियल नंबर आने वाला है, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, नाउ सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिफाइंड लाइक दिस। नेक्स्ट आपको अभी क्या चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। आप अभी खुद कैलकुलेट करके मुझे बोलो क्या आने वाला है, आप करो ना कैलकुलेट, इसको डिफरेंशिएट करो, e raised to x का क्या आएगा, e raised to x, e raised to minus x का क्या आएगा, minus e raised to, तो इट बिकम दिस, तो ये करेक्ट लिखा है मैंने डेरिवेटिव, तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, cos cos हाइपरबोलिक, cos, तो सो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या आता है, cos हाइपरबोलिक x,
कितना सिंपल है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, बोलो अभी आप खुद कैलकुलेट करके मुझे बोलो क्या आने वाला है। साइन। साइन। साइन है। तो हाइपरबोलिक में क्या होता है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक से कंपेयर करते हो ना, हाइपरबोलिक में ये निगेटिव साइन बाहर ही नहीं आता। साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स, इतना इजी होता है। अभी यहाँ से तो आप इजीली इंटीग्रेशन लिख सकते हो। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स? कॉस कॉस हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक एक्स। इसमें Cos hyperbolic x। इसको रिवर्स करना है ना, ये डेरिवेटिव यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, एंड सॉरी 1 एंड सेकंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक x dx इज sin हाइपरबोलिक x। ओके, अभी के लिए इतना ठीक है। ओके, tan हाइपरबोलिक x भी होता है, बट मैं आपको बस इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ, आप बाद में भी उसका डेरिवेटिव ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, बट जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे लेते हैं। हाँ हाँ। नाउ what is the definition of tan hyperbolic x? So tan hyperbolic x is actually similar to trigonometric function sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन। तो आपको ये वैल्यूज पुट करके भी समझ में आएगा। तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे, e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ tan hyperbolic x। अब ये चीज़ आपको, सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया अभी। फॉर एग्जाम्पल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin hyperbolic 0? बोलो। 1। 1 इसमें पुट करो ना, e raised to 0, सॉरी 1 कैसे आएगा? 0 minus 0 is 1 minus e raised to 0 is 1, 1 minus 1 becomes 0, तो ये क्या आता है 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos हाइपरबोलिक 0? 1, अभी 1 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप सारी चीज़ें अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन किया। अभी मैं इसमें डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, आप वेरीफाई करो। सो डेरिवेटिव ऑफ, अब इसके आगे सारे सिमिलर है। आप अभी कैन यू टेल मी डेफिनेशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स? सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक होता है वो सारा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स? 1 upon upon cos hyperbolic x। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक x? 1 upon sin हाइपरबोलिक x। तो सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी मैं आपको बस ओरली इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। द डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x इज sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, एंड सेम यू कैन राइट द इंटीग्रेशन, बट आपको ज़्यादातर साइन एंड कॉस के ऊपर ही आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, सो इतना ठीक है, दिस इज इनफ। ओके, इसके आगे रिलेशन भी आता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। ओके, नाउ दिस मच नॉलेज इज इनफ। सो नाउ यू कैन टेल मी। सो अभी आपको क्या चाहिए? जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। सो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा इट इज इक्वल टू, एक्स को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या मिलेगा? कॉस हाइपरबोलिक। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आर साइन। आर साइन थीटा। ओके, एक और रिजल्ट शायद देना होगा। तो क्या बोला है यहाँ, वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर इज साइन हाइपरबोलिक थीटा, एंड y का with respect to theta is r cos hyperbolic theta. So it is equal to r cos hyperbolic square theta minus r sin hyperbolic square theta। अभी एक और मैं स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको दे रहा हूँ। हाँ, आपको क्या करना है अभी, जैसे कोई टाइप कर रहा है क्या कुछ? मेनी स्टूडेंट्स आर absent टुडे। ओके, दिस काउंट इज 59। तो अगर आप 5 मिनट के लिए 6 मिनट के लिए अगर ऑनलाइन रहते हो ना, तो इट विल नॉट हेल्पफुल। ठीक है, और लास्ट के सेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, समझ में आ गया जब आपकी एग्जाम होगी। ओके, सो आर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस आर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ओके, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट आपको पता है, वो सारे रिजल्ट आप हाइपरबोलिक में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्री का एक फेमस रिजल्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, कैसे ये सारे कन्वर्ट, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हाइपरबोलिक में, हाँ उसके लिए कंडीशन क्या है, हाइपरबोलिक में ये सेम रिजल्ट अगर आपको लिखना है ना, तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, हाइपरबोलिक में ये मैं एक हिंट ट्रिक दे रहा हूँ। हाइपरबोलिक में साइन स्क्वायर एक्स ये जो फंक्शन होता है, हाइपरबोलिक में ये चेंज होता है माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स।
जहाँ पे भी साइन स्क्वायर ये इसकी जगह पे आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स फंक्शन वैसा ही रहता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर आता है, जहाँ पे साइन स्क्वायर आता है वो सारे टर्म्स आपको चेंज करने माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और जहाँ पे कॉस आता है कॉस को डायरेक्टली कॉस हाइपरबोलिक से रिप्लेस करना है। सो व्हाट इज द रिलेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस? अभी आप बोलोगे साइन एक्स के लिए क्या और कॉस एक्स के लिए किया है, ओके अभी उसकी जरूरत नहीं है, सो उसको छोड़ दो, जस्ट रिमेंबर फॉर दिस। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो वो कंफर्म उसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। साइन एक्स रिप्लेस होता है एक्चुअली आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस रिप्लेस होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, सो दैट पार्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके हाँ, अभी आप मुझे बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको मुझे हाइपरबोलिक में लिखना है, ये फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स साइन माइनस स्क्वायर रिप्लेस होता है माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? इफ आई टेक आर कॉमन, व्हाट इज द ब्रैकेट? 1 है ना, कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर योर आंसर इज आर। तो जितना मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है उतना इनफ है एज फार एज हाइपरबोलिक फंक्शंस आर कंसर्न। ठीक है, क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। नेक्स्ट क्या चाहिए? यूवी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कैलकुलेट करने के बाद एट 0,π/2 के लिए कैलकुलेट भी करना है। चलो लेट्स डू इट। सो जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज cos y, u का with respect to y is minus x sin y, v का with respect to x is minus y sin x, v का with respect to y is just cos x, and if I solve the determinant you will get cos y cos x plus x into sin x sin y, and now we have to calculate at x is equal to 0 and y is equal to π/2. So what is that answer? सर माइनस माइनस This is minus. Okay. 2 times minus and there is one more minus. Okay. तर तो एक्स वाय पण असेल त्यामध्ये, क्या क्या रहेगा? Anything? वाय सेकंड टर्म मध्ये वाय पण असेल ना, माइनस एक्स वाई साइन एक्स साइन वाई। Okay. U with respect to x. ये करेक्ट है। U with respect to y. हाँ. V with respect to x and V with respect to y. क्या क्या मिस्टेक लग रही है? पुढे त्याच्या क्रॉस मल्टीप्लाय केल्यानंतर हाँ रे हाँ, एक्स वाय ठीक है सॉरी यार, सो लेट मी करेक्ट इट। हाँ, ये होता है माइनस, ओके, एंड x इंटू वाई साइन एक्स साइन वाई। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। हाँ, नाउ जस्ट पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू π/2। जल्दबाजी में लेने से ऐसे मिस्टेक हो जाती है। हाँ, x इक्वल टू 0 तो ये कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 होने वाला है ना। cos 0 इज 1 एंड y इक्वल टू π/2। cos π/2 इज व्हाट? cos 0 इज 1, cos π/2 इज 0, तो आंसर इज 0। ओके, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, अभी ये एक क्वेश्चन है बट आप उसको उसमें कितने भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। या नाउ नेक्स्ट, अभी ये ट्रिवियल है, ऑलरेडी x डिफाइन है, y डिफाइन है, z डिफाइन है, एंड x y z का विद रिस्पेक्ट टू UVW कैलकुलेट करना है। ओके, सो कैन आई स्किप दिस नाउ? यस सर। ओके, Yes. ये फॉर्मूला है UVW का विद रिस्पेक्ट टू x y z, यू कैन डू दिस। हाँ, यहाँ पे आप देखो z डैश का एप्लीकेशन है, ठीक है। सो ये j इंटू z डैश के क्वेश्चन एक्सप्लिसिट फॉर्म के लिए ही आते हैं, दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट फॉर्म गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो ये जो एक्सप्लिसिट फॉर्म गिवन है यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यूवी, दिस यू कैन कैलकुलेट। सो दिस इज डिनोटेड बाय जे। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ओके, वही आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो डायरेक्टली। सो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू इज वी, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वी, अब इसमें टाइम जाएगा, यू कैन आई थिंक डू दिस। ओके, सिंपल डेरिवेटिव लेने और आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। हाँ, मुझे रिवर्स एप्लीकेशन का चाहिए। यहाँ पे भी हाँ, ये देखो अभी क्वेश्चन, अगेन दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्म, जे डैश का पार्ट एक्सप्लिसिट फॉर्म के लिए यूज करो। तो अगेन दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो क्या गिवन है? एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यू कैन कैलकुलेट जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी।
डिनोट दिस वैल्यू बाय जे, ठीक है। बट आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको रिवर्स कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन क्या है, फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 अपॉन जे, क्लियर है। एंड दिस इज एक्चुअली डिनोटेड बाय जे डैश। इज दिस क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, या सॉल्व करके दो ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो जे डैश कहाँ पे यूज करना है वो आप पहले, मतलब दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। जे डैश कौन से एग्जांपल में आता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लिसिट फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट फॉर्म गिवन था, ठीक है, तो आप जे कैलकुलेट करके 1 अपॉन जे से जे डैश कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सिंपल एग्जांपल में वो पार्ट एक्सप्लेन भी करता हूँ मैं। हाँ, u इक्वल टू एक्स वाई, वी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब पहले देखो क्या गिवन है, u इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, v इन टर्म्स ऑफ हेलो हेलो सर। हाँ सर एक जन वेटिंग रूम में, वो रीजन नहीं हो पा रहा वो। नहीं शो कर रहा है। ओके सर। फिर से बोलो कनेक्ट करने के लिए, लॉग आउट करके फिर से लॉग हाँ इन सर। करो तो आ जाएगा। ओके, सो हाँ तो u in terms of x and y, v in terms of x and y, it means here you can calculate the Jacobian of uv with respect to xy। ये आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। therefore we denote this part by our we denote this value by j। अभी देखो क्या कैलकुलेट करना है, उन्होंने रिवर्स पूछा है, इसका मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, j डैश कैलकुलेट करना है, which is reverse of this Jacobian of xy with respect to uv। and what is the formula for this j dash, it is actually 1 upon j। तो आप बस क्या करो, j कैलकुलेट करो, जस्ट टेक द इनवर्स ऑफ दैट। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या आएगी, u का विद रिस्पेक्ट टू x इज y, u का विद रिस्पेक्ट टू y इज x, v का विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, v का विद रिस्पेक्ट टू y इज दिस। सो दैट गिव्स मी y माइनस एक्स। सो योर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन y माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ j इंटू जे डैश, बट j इंटू जे डैश के क्वेश्चन में आपको वहाँ पे कंपलसरी एक्सप्लिसिट फॉर्म चाहिए, तो ही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, उसने रिक्वेस्ट भेजी है आपको अभी। वो आ गया मुझे, आई थी बट फिर से वो ये हो रहा है, ठीक है। और इसकी 357 वेदांत सर का सर आ गया, ठीक है, ठीक है। एंड नाउ अभी सेम यहाँ पे भी आप देखो, x इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा, y इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा। तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या होगी, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो आप ये कैलकुलेट करो पहले, बट आपको कैलकुलेट क्या करना था, आर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। सो द j डैश विच इज आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज एक्चुअली बिकम 1 अपॉन j। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, j इंटू जे डैश का एप्लीकेशन है। इतना बस याद रखो, एक्सप्लिसिट फॉर्म है ना, एक तो वो डायरेक्ट डिटरमिनेंट से होगा या तो वो 1 अपॉन जे डैश से होगा। एक्सप्लिसिट फॉर्म, यही दो ऑप्शन है। इम्प्लिसिट फॉर्म के लिए थोड़े रिजल्ट टफ हो जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, e raised to u tan v e raised to u sec v, ठीक है। ये भी हमने सॉल्व भी किया है, इसका पार्ट है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, क्या यू गेस, ये इसको हमने सॉल्व किया है, जी सर, बी होगा, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो उसको ही रिवर्स करना है, ठीक है। ये भी हमने सॉल्व किया था, आंसर क्या आया था आर, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन आर। तो जो पहले क्वेश्चन है उसको ही अभी फिर से मैं इन टर्म्स ऑफ जे डैश दे रहा हूँ, इतना ही चेंज, ठीक है। एंड ये चेन रूल है, व्हाट इज दिस आंसर, u एंड v इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, r एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। u v r थीटा, u v r थीटा कहाँ पे, हाँ u v r थीटा r थीटा x y, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन भी दिया है, या क्या कैलकुलेट करना है, क्या गिवन है, u v इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है, x एंड y इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा,
ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा विच इज जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड देन जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा. सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस. तो ये क्या आएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, u का विद रिस्पेक्ट टू y 0, v का विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, v का विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 एंड देन इनटू x का विद रिस्पेक्ट टू r इज cos थीटा, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस r sin थीटा, y का विद रिस्पेक्ट टू r इज sin थीटा, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज r cos थीटा. ठीक है, सो दिस डिटर्मिनेंट इज 1 एंड दिस डिटर्मिनेंट इज r. ठीक है, r इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. सो योर फिर से मैंने कुछ मिस्टेक की क्या? आर ऑप्शन नहीं सर. नहीं सर, आर से ज्यादा ऑप्शन नहीं है. ओके, रॉन्ग है ना ये, मुझे लगा फिर से मैंने कुछ किया. हाँ Options wrong. हाँ, ऑप्शंस आर रॉन्ग. ठीक है, सो यू कैन मेक दिस वैल्यू टू बी आर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड यू वी क्या दिया ये, एक्स वाई इक्वल टू f1 यू वी. आई डोंट थिंक सो इट इज करेक्ट वे टू डिफाइन दिस. f1 f2 छोड़ दो. क्या गिवन है, एक्स वाई का आर थीटा इज ई रेस टू 2r, देन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा इज 1/r. आपको चाहिए एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू वी. सर बी है सर ऑप्शन. B option. हाँ बड़ी ऐसे क्या डिफाइन किया है, एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी. सो कुछ तो सीक्वेंस चाहिए ना, इसको अभी रिवर्स करके जाना होगा फिर, है ना. Yes sir. करेक्ट. हाँ, सो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी. नाउ इन बिटवीन देर आर 2 वेरिएबल, है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा. इन बिटवीन देर आर 2 वेरिएबल विच इज आर थीटा. ओके, तो आपको बस आर थीटा एडजस्ट करना है. सो फर्स्ट यू कैन गो फ्रॉम एक्स वाई टू आर थीटा एंड देन यू कैन गो फ्रॉम आर थीटा टू आर थीटा टू यू वी. ठीक है, तो देखो क्या क्या गिवन है. आई थिंक एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा इज गिवन विच इज ई रेस टू 2r. ओके, बट आपको इसका रिवर्स गिवन है, आपको यू वी का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा गिवन है. इसको तो इसको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा. तो 1/r का रिवर्स r आता है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट होकर आपको वहाँ पे आ सकते हैं. ठीक है, यू वी का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, अब ये ट्रिवल है, सिंपल चेन रूल है, यू कैन यूज दिस. इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसको मैं इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर से लेता हूँ. ठीक है, चलो थोड़ा अर्ली हो रहा है बट अभी ये कंप्लीट नहीं होगा. देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट, सो दैट आई विल टेक इन अ नेक्स्ट लेक्चर. अब इसके आगे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज है, 46 एमसीक्यूज है, मतलब और भी 20-25 एमसीक्यूज है. सो दैट वी कैन इजीली कवर इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है.